Yes, sir. Actually, I have login from Mukesh Gupta, sir. Okay, so I'm going to start. Rakesh, sir, shall we start? Rakesh, sir, shall we start? हाँ जी सर प्लीज गो अहेड। Okay. So, a very good afternoon to one and all those who are present here for the webinar series being organized by Shri Sai Group of Institutes. So, today, Shri Sai Polytechnic College Badani, Pathankot, in collaboration with District Employment Generation Bureau, Pathankot, are willing to know about the loan process. Loan process, here why I am saying this, because there are certain schemes of Government of India as well as Punjab government. So people are not well aware of this thing. So that's why the Employment Generation Pathankot as well as the Sai Polytechnic College has started this initiative for organizing the awareness session to all of you, for all of you. So for this session, behind this session, I take this privilege to welcome on behalf of management of Shri Sai Group of Institutes, especially our chairman sir, engineer S.K. Punji, our respected chairman sir, engineer S.K. Punji sir, our worthy managing director Srimati Tripta Punj ma'am, our chief managing director Sir Tushar Punj sir, the director of this webinar series, Principal Engineer Mukesh Gupta ji, Sai Polytechnic College, and from Employment Exchange, Mr. Gurmel Singh ji, District Employment Officer, and Mr. Rakesh Kumar ji, Placement Officer, Pathankot. So, on behalf of all of them, and of course, the listeners and the viewers of today, I take this privilege to welcome the great personalities of Pathankot who are working in government sector as well as in banking sector. Those who we have those to them we have invited today for the live webinar session. So first of all, there is Madam Sarabjit Kaur, SC Corporation, Mr. Anil Kumar, FMDIC, Sardar Balkar Singh, RMSBI, Mr. Nitin Jain, HDFC Bank. So all these speakers will be here today for the live webinar session. So I request all of you, because there are certain schemes जो कि भारत सरकार और पंजाब सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, कई तरह की मुहिम है जो कि चलाई जा रही हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन स्कीम्स को बड़े ध्यान से, जो ये विशेषज्ञ आज हमारे को बताने वाले हैं, इनकी बात को सुने, क्योंकि जब मेरे से भी ये बात की गई कि इस तरीके की पंजाब सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिसके अंदर की सब्सिडी है और सिक्योरिटी भी नहीं देना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भर, जिसकी बात हम आज कोविड-19 के अंदर कर रहे हैं कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की और बढ़ना चाहिए। तो उस और अग्रसर होने के लिए ये जो स्कीम्स हैं, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट किसी ना किसी रूप में आपको दे सकती हैं। तो मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इसको सुने और जो विशेषज्ञ आज हमारे बीच में करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए साई पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप इसको सुनेंगे और अपनी जो भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, किसी का कोई डाउट है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है कि किस प्रकार से सिक्योरिटी का क्या, आपसे विनम्र प्रार्थना है सब लिसनर से
कि अपने माइक को म्यूट रखिएगा। जब जब स्पीकर बोल रहे होंगे तो प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिएगा, और उस ताकि स्पीकर जो है वो निरंतर बोल सकें कि बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आए हुए सभी हमारे जो माननीय अतिथि हैं, जो आज बोलने वाले हैं, जो आज आपको समझाने वाले हैं, उनका मुकेश गुप्ता सर की तरफ से और मैनेजमेंट श्री साईं कॉलेज की तरफ से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अब राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो पहले स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाकर अपना जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट Rakesh sir to please announce the name of our first speaker, who is going to start the session. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश है, मैं प्लेसमेंट ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ Yes, Rakesh sir, over to you. ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਡੀਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਵਕਤੇ ਲੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो 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 हेलो, अच्छा ओके। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं फंक्शनल मैनेजर हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से, पठानकोट मेरी पोस्टिंग है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ PMEGP, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ, ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 25% ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 15% ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 5% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 10% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 35% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਬੈਕੋ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਦੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੀਗੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੋਬੈਕੋ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਲੈ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਲੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੰਸਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ PMEGP ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ 36 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 100 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 36 ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪੈਥੇਟਿਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 72 ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ 36 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ PMEGP। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50-100 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 5 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 हेलो सर। हाँ ठीक है, आवाज आ रही, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? गौरव जी प्लीज कंफर्म। हेलो यस सर, यू ऑडिबल सर, कैरी ऑन। ओके ओके। अच्छा, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜੀ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਪਸੀ ਲੱਗਿਆ 300-400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਿਨਰਲ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਰਲਸ ਲਾਈਕ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰੈਸਟ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੀਨ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਰਬੜ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, IT ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਸਿਕਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ, ਮੀਡੀਅਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, to develop world-class infrastructure for the industry, to provide quality and affordable power to industry, to accelerate growth of MSMEs. MSME means micro, small, medium enterprises. To focus on startup and entrepreneurship, to facilitate availability of skilled manpower to the industry, to improve the ease of doing business in the state, to build institutional capacity and enhance institutional linkages, to bring energy between state program and central schemes. ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1 ਸਟੈਪ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਸਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 1 ਸਟੈਪ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜੀਐਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਵਹੀਕਲਸ, ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਰੀਬਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਟ SGST ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ SGST ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75% ਆਫ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ SGST ਹੈ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ 700 ਗੁਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ SGST 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ 125% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ SGST ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ 5% ਪਰ ਐਨਮ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਈਅਰ ਫਾਰ 3 ਈਅਰ। 3 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SC ਅਗਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ,
MSME ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ MSMEs ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ MSME ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 100% ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ MSME ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਉਹ 50% ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 100% ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਫੀਸ ਪੇਡ ਫਾਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪ ਟੂ 10 years ਫॉर ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ CLU ਹੈ ਜਿਹੜਾ CLU ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CLU ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ CLU ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ STP ਜਾਂ DTP ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CLU ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਥਰਡ ਸੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਅੱਗੇ 5-5, 10-10 ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। 9 ਤੋਂ 5 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hello. Now I will invite Mr. Nitin Ji who is area head in HDFC Bank, and he will tell you all the problems related banking related issues. So he will address you now. Hello. Voice is there now? Yeah. Good afternoon to everybody. Thanks, sir, for your kind information on various government projects which
Government of India and Punjab is running. Colleagues, friends, I will just take you briefly on the PMEGP concept, which sir has explained earlier in a brief manner, what exactly you need to do in that case. PMEGP project is run by the central government of India, and it is implemented through the Khadi and Village Commission and District Industry Center. So any individual who aspire to become ए एंटरप्रेन्योर और अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग का या ट्रेडिंग का, तो वो अपना एप्लीकेशन खादी विलेज कमीशन या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर सकता है, या फिर फिजिकली जाकर दफ्तर में खादी विलेज कमीशन के या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के कमीशन में सबमिट कर सकता है। इसके अंतर्गत आपको 10 लाख तक का लोन ट्रेडिंग या अदर पर्पसेस, और अगर आपने कुछ मैन्युफैक्चर बनाना है तो 25 लाख तक का लोन मिलता है। बैंक इसमें आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको एक टर्म लोन की शेप में देगा, और वर्किंग कैपिटल आपका सेपरेट होगा जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको होता है। इसमें जो सब्सिडी पार्ट है वो 15% अर्बन लोकेशन में आप अगर अपनी कोई यूनिट लगाते हैं या अपना कोई काम शुरू करते हैं तो 15% है, 25% आपका रूरल में है। यानी कि आपने अगर 10 लाख का लोन अप्लाई किया तो 1.5 लाख की सब्सिडी है अर्बन में, नहीं तो 2.5 लाख की सब्सिडी है रूरल एरिया में। सो ये मेजर अमाउंट है, ये मेजर स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपका 10 लाख का लोन है मैन्युफैक्चरिंग का या 5 लाख का, उससे नीचे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट इससे ऊपर का आप लोन अप्लाई करते हैं तो कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है, और कम से कम उम्र है 18 साल। इसके अंदर सर ने नेगेटिव लिस्ट भी बताई थी, मैं फिर भी थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दूंगा। टबैको इंडस्ट्री हो गया, लिकर से रिलेटेड कुछ हो गया, एनवायरमेंटल के अगेंस्ट जो चीजें हैं वो नहीं हम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को नहीं कवर करते, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं कवर होता इसके अंदर। प्लस आपकी कोई लोन पहले से आपने किसी स्कीम में लिया हुआ है गवर्नमेंट के, वो भी नहीं कवर होता है। इसमें केवल न्यू प्रोजेक्ट्स कवर होते हैं, बिल्कुल नया चलता हुआ काम नहीं है, वो अलग से आपको ट्रीट करना है बैंक के साथ। यहाँ पर केवल नए प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो आपने एक सोचा है, लगाना चाहते हैं, और उसकी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको दोनों ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज या खादी विलेज कमीशन के थ्रू लगाना है। इसके ऊपर ऑनलाइन पोर्टल, हाँ, जो पोर्टल है वो है PMEGP ई पोर्टल या www.kvic.gov.in। इन दोनों पोर्टल पे आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा इसमें आपका कितना पैसा लगेगा। जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका स्पेशल कैटेगरी में 5% और जनरल कैटेगरी में 10%। मैं अब जर्नल और स्पेशल को डिफरेंशिएट कर देता हूं आप लोगों के लिए। सिंप्लीफाइड टर्म में जर्नल का मतलब ये है मेल मेंबर इन जर्नल कैटेगरी जो हमारे यहाँ होती है, और उसके अलावा चाहे वुमेन है या एनी अदर हमारा क्राइटेरिया है वो सारा स्पेशल कैटेगरी में आता है। जनरल में सिर्फ मेल मेंबर फ्रॉम जर्नल कैटेगरी विल कम इन जनरल, रेस्ट ऑल आर इन स्पेशल कैटेगरी। तो स्पेशल कैटेगरी में आपका मार्जिन मनी केवल 5% है, यानी कि आपने 10 लाख का या 5 लाख का प्रोजेक्ट दिया है तो उसका दिखाना, यानी कि 10 लाख का 3.5 लाख रुपए रूरल में आपने विलेज में प्रोजेक्ट लगाया है तो आपको 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। और जो सब्सिडी है वो बैंक को मिलती है, दैट बैंक हैज टू क्लेम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट एज एक्सप्लेन्ड बाय यू। अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने बताया आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, फिर आपको एक सैंक्शन होने के बाद ट्रेनिंग को गो थ्रू करना है। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या किसान ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जो आपने करनी है खादी विलेज कमीशन द्वारा। वो ट्रेनिंग आपको पास करके वो सर्टिफिकेट लेना है। आपकी एप्लीकेशन को फिर स्क्रीनिंग की जाएगी, इंटरव्यू किया जाएगा, फिर आपकी साइट इंस्पेक्शन होगी और आपको लोन प्रोसेसिंग के लिए अप्रेजल करेगा बैंक अपने गाइडलाइंस के मुताबिक। और 10 लाख तक के लोन पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है 10 लाख तक का लोन का।
तो अगर नेट देखें, हमें इस चीज में कोई भी युवक, जवान या अनएम्प्लॉयड यूथ नौकरी ढूंढने की बजाय अगर उसके पास क्षमता है, स्किल्स हैं, उसने कुछ, कई बार होता है फैमिली से एक्वायर्ड स्किल्स होते हैं हमारे पास, तो वो उसको इस्तेमाल करके अपना काम शुरू करे और गवर्नमेंट की इस सुविधा का फायदा उठाए, तो वो अपना एक व्यापार जनरेट कर सकता है, प्लस कुछ और लोगों को भी काम में दिला सकता है। तो नेट दोनों को फायदा है। अब बैंक को क्या क्या चाहिए इस पूरे स्कीम के अंदर, वो थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं मैं। हमें एक तो लेटर चाहिए जो डिपार्टमेंट देगा हमें कि ये केस हमें करना है। दूसरा, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए अगर लोन अमाउंट 75,000 रुपए से ज्यादा का है। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना चाहूंगा। आप में से जो कोई फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ज्यादा भी इसकी नॉलेज भी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये होता है कि आप अपना जो ये कार्य काम लगाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, इसके बायर्स कौन होंगे, आप कितने पीरियड में कितना मैन्युफैक्चर करेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ऑल दिस इज द फोरकास्टिंग। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितना ज्यादा आप खुद बनाएं उतना बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने खुद बनाई है तो आपको बिजनेस की वो समझ आ गई है, और आप जब स्क्रीनिंग होती है या इंटरव्यू होता है, बैंक इंटरव्यू करता है, तो आप इजीली उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। नहीं तो सैंपल के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। प्लस मैं यही कहूंगा कि उनको यूज ना करें। उनको यूज करेंगे तो वो किसी और ने अपने दिमाग से बनाई है। आपका क्या काम शुरू करने वाले हैं आप ना एजेंसी को बता पाएंगे ना बैंक को बता पाएंगे, जिससे आपको फंड्स मिलने में दिक्कत होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको 75,000 से ऊपर का लोन चाहिए, उसके ऊपर सारा दावेदार है कि कोई बैंक आपका लोन अप्रेज कर रहा है, तो उसको कंफर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आप बैंक का पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इट्स ए स्टेट स्पेसिफिक। इट इज एक क्वेश्चन आया था अभी कि पंजाब से बाहर का कोई बंदा लोन अप्लाई कर सकता है। इट इज ए स्टेट स्पेसिफिक। हम यहाँ भी पंजाब की बात कर रहे हैं। हाँ, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो उस स्टेट में अप्लाई होगा। वो आप हिमाचल में है तो हिमाचल स्टेट में अप्लाई करेंगे, आप हरियाणा में है तो हरियाणा स्टेट में अप्लाई करेंगे। सो दिस इज ऑन दिस क्वेश्चन। बाकी आपका हमें फिर जो बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एंड देन बैंक विल डू इट्स साइट विजिट एंड इंस्पेक्शन, और उसके बाद अपना बैंक अपने नॉर्म्स के मुताबिक अप्रेजल करेगा। इफ दे फाउंड इट सेटिस्फैक्टरी एंड जहां पर लगा कि ये रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और प्रोजेक्ट वाइबल है, आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। लोन सैंक्शन के बाद आपको वो ट्रेनिंग कवर करके वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना है। आपका प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद जो सब्सिडी है वो बैंक को मिलेगी। वो सब्सिडी बैंक 3 साल की एफडी में रखेगा, जिसपे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आपको किसी ने कुछ सवाल किया था, आपको उसमें अगर 3 साल के पीरियड में अपना जो लोन अमाउंट सैंक्शनड है वो पूरा यूटिलाइज करके रखना है। 75% तक यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और साल में एक बारी 100% यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। इस स्कीम में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्रोजेक्ट अप्लाई कर दिया, लोन सैंक्शन करा लिया और वो प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ तो ये सब विड्रॉ कर लिया जाता है। आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है और वो पैसा यूटिलाइज करना है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्रिटिकल थे, जो मैंने कवर किए हैं। बाकी इस स्कीम की डिटेल्स आपको गूगल सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट राइटअप मिल जाएगा। प्लस यूट्यूब में जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपने अपने वीडियोस भी डाले हुए हैं एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप व्हाट ऑल टू बी डन इन PMEGP स्कीम, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो अपना मन बनाइए। मैं आपको वैसे अपनी ही एक कहानी बताना चाहूंगा। जब मैं पढ़ के निकला तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट लगाने की सोची थी। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना ली थी, बट मुझे दिक्कत आई थी कि उस टाइम इस तरह की कोई स्कीम नहीं होती थी, तो मुझे फंड्स नहीं मिल पाए। आप लोगों में नॉलेज है, आपने स्किल्स हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए अपनी। आज की डेट में फंडिंग अवेलेबल है, गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स हैं।
तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी अपना कुछ कामकाज दे सकते हैं। तो नेट नेट आप इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो प्लीज मेक फुल यूज आउट ऑफ दिस स्कीम PMEGP। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ और ऐड करना है इसमें? Any queries you can ask me now or later on as well. है कोई क्वेरी राकेश? बहुत अच्छे से भी नितिन जी ने बहुत विस्तार से अभी सारी किया है सबके साथ। मैं सबको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पठानकोट का और साई पॉलिटेक्निक का दोनों का एक संकल्प था कि क्योंकि अभी थोड़ा सा टेक्निकली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कारण यही है कि सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से वहां बैठकर जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो वहां से बैठकर कनेक्ट कर रहे हैं और एक ही जगह से सबको, क्योंकि भाव सबका एक ही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे हमारे नितिन जी अभी बात करके हटे हैं HDFC बैंक से, चाहे राकेश जी गुरमेल जी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, चाहे साई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, भाव सबका एक ही है कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो सरकार की हैं, लोन से रिलेटेड हैं। अभी एंटरप्रेन्योर के ऊपर अपनी कहानी बताई उन्होंने कि मैंने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन उस समय इस तरीके की कोई स्कीम नहीं था। तो हम सबका यही है, इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सबको अवगत कराने के लिए कि आप भी आगे बढ़ें। और ये सेशन सिर्फ एक शुरुआत है, आप तक हर इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का ये एक शुरुआत है, जो छोटी सी शुरुआत है, जिसको कि आपके सहयोग के साथ हम और आगे लेके जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के पास हर तरह की, साई पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तरह की सुविधा आपके लिए है। आप किसी भी समय किसी भी जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी नंबर हैं, हमारे भी नंबर हैं, आप बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी है और इसके ऊपर और एक्सप्लेन, जैसे आपकी अगर कोई क्वेरीज है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर किसी चीज के ऊपर आप बात करना चाहते हैं और विस्तार से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा। आप निसंदेह अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन है और वो आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और साई पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है जरूर आपका क्वेरी जो है सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि काफी जो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं जो साई पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारा जो जनरेशन पठानकोट ब्यूरो है वहाँ से भी काफी जो लोग हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। और राकेश जी को भी मैं देख पा रहा हूँ कि इसके बाद जो हमारा सेशन है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 स्कीम्स के ऊपर बात कर चुके हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ राकेश जी से कि क्या हम आगे अभी के कौन से स्पीकर अवेलेबल हैं जिनसे हम बात कर सकें। राकेश जी। हाँ जी सर। सर ऐसा है कि हमारे पास सारे स्पीकर अवेलेबल हैं। अभी मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर उमेश महाजन जी, जो कि SBI बैंक से हैं। वो मुद्रा लोन के बारे में आपको बताएंगे कि हम कैसे मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई विल इनवाइट मिस्टर उमेश महाजन। अभी SBI से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दें और जो ऑफिसर हमारे साथ SBI बैंक से जुड़ रहे हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके और वीडियो जो है वो अपना मोड ऑन कर लीजिए। तो मुद्रा लोन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। मुद्रा लोन क्या है, किस प्रकार इसको लिया जा सकता है, कौन कौन जो है एप्लीकेबल है मुद्रा लोन लेने के लिए। तो मैं पुनः स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं पुनः सर से अनुरोध करूंगा कि
स्टार्ट करने से पहले सर SBI से हैं, तो सर जो है मुद्रा लोन के बारे में बात करेंगे। यस राकेश जी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अभी ऑलरेडी हम DIC ऑफिस से और HDFC बैंक से PMEGP स्कीम के बारे में, बेसिकली दी स्कीम्स आर गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम, उनके बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं, ये जो DIC ऑफिस से सर ने बताई स्टेट गवर्नमेंट की, और दूसरा PMEGP, ये दोनों सब्सिडी लिंक्ड स्कीम्स हैं बेसिकली। तो इनके थ्रू जब हम जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी की एड मिलती है। लेकिन अब जो मैं स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मुद्रा लोन, और आज की डेट में सभी इसके नाम से वाकिफ हैं, मुद्रा लोन के। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च की थी। बेसिकली दिस स्कीम इज फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यू कैन से। जैसा सर ने बताया DIC ऑफिस से, जो सर ने उन्होंने बताया MSME के बारे में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये स्कीम मोटे मोटे तौर पे देखें तो माइक्रो जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं उनके लिए, यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ये स्कीम उनके लिए है। इस स्कीम में हम 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का फाइनेंसिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली इसको 3 भागों में बांटा गया है इस स्कीम को, जिसके 3 मॉडल्स का नाम दिया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। तो जो लोन 1 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक, मतलब हम इस स्कीम के अंडर 100 रुपए का भी लोन ले सकते हैं। खैर 100 रुपए का लोन लेने के लिए कोई आएगा नहीं, यानी कि 10,000 की मैं बात करूं, 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन हम लेते हैं। शिशु स्कीम, उसका नाम है शिशु। सेकंड कैटेगरी इज किशोर, दैट वेरीज फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। थर्ड वन इज तरुण, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये 10 लाख तक के लोन्स के लिए स्कीम है। जो अपना स्टार्टअप, छोटा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोलेटरल अवेलेबल नहीं है, तो ये स्कीम उन सब के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें चाहे नया बिजनेस है, चाहे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं हम और उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हर सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का है, चाहे वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि एक दुकानदार, छोटे से छोटा दुकानदार भी इस स्कीम में एलिजिबल है। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं, अलाइड एक्टिविटीज में हम जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ अलाइड एक्टिविटीज रहती हैं, उनको भी इसके अंडर फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये मतलब इसमें आ गया एलिजिबल बोरोवर्स, कौन कौन हम इसमें हमसे लोन ले सकता है। नेक्स्ट इज, अगर कोई कस्टमर बैंक के पास आता है मुद्रा में लोन लेने के लिए, तो बैंक सबसे पहले पूछता है कि काम क्या कर रहे हैं आप। वो मैंने आपको बता दिया कि आप इन कैटेगरीज में से कोई भी काम करते होंगे, वो इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट इज कि आपने अपना क्या लगाया है इसमें। तो जो लोन 50,000 तक का है, उसमें इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर देयर इज नो नीड ऑफ एनी मार्जिन, यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो मैंने खुद भी फाइनेंस किया। रिक्शा पुलर, रिक्शा 3 साइकिल जो होता है, 3 व्हीलर वाला रिक्शा जो रहता है, तो इट कॉस्ट अराउंड 12,000। तो अप्रोक्सीमेटली 4 साल पहले चले जाएं तो आई वाज ब्रांच मैनेजर देयर इन गुरदासपुर रोड, पठानकोट ब्रांच। तो उसमें मैंने 20 रिक्शा पुलर्स को रिक्शा दिए थे। 12,000 का रिक्शा था और फुल
फुल अमाउंट डिसबर्स की थी, 20 लोन पर्टिकुलरली मैंने खुद किए थे और सिर्फ एक लोन खराब हुआ था। तो अगर प्रॉपर एक्टिविटी के लिए लोन लिया जाता है तो, और जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं उस पर्पस में आप यूटिलाइज करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो मैं बता रहा था, ये तो एक बात हो गई बीच में, तो 50,000 तक का लोन है तो उसमें मार्जिन की कोई जरूरत नहीं है, और 50,000 से ऊपर 10 लाख तक अगर हम लोन लेना चाहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट इस तरह का है कि हमें ज्यादा लोन चाहिए 50,000 से 10 लाख तक का, तो उसमें आपका मार्जिन 20% रहेगा। यानी कि अगर आपका लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो 20,000 आपको लेकर आना है और 80,000 की आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक के द्वारा कर दी जाएगी। उसके बाद बात करें कि इसमें आप किस तरह के लोन ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए स्टॉक की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसमें आप डेली के डेली आपकी सेल हो रही है, डेली के डेली परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। तो वर्किंग कैपिटल इसमें आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इज, अगर आप कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं तो वो आपका एक फिक्स्ड एसेट है, तो उसके लिए आपको टर्म लोन मिल जाता है। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस रहता है? टर्म लोन में आपको मंथली रीपे करना है, इंस्टॉलमेंट बन जाती है और वो आपको मंथली रीपे करना है। तो जो टर्म लोन अगर आप लेते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हैं बैंक के फाइनेंस से इस लोन के द्वारा, तो उसका टर्म मैक्सिमम 5 साल तक। द लोन अमाउंट, इफ द लोन अमाउंट इज अप टू 5 लाख, देन टर्म लोन की जो मैक्सिमम रीपेमेंट है 5 साल तक कर सकते हैं, और अगर लोन अमाउंट 5 से 10 साल का है तो रीपेमेंट 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दिस इज फॉर टर्म लोन। इसमें मंथली ईएमआई बन जाती है जो आपको बैंक को पे करनी है, 5 साल में लोन खत्म करना है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको अपनी सेल इस अकाउंट के थ्रू रूट करनी है, परचेज इसके थ्रू करनी है। तो इस तरह से इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिक्योरिटी। 10 लाख तक के लोन में, यानी कि मुद्रा की बात करें पर्टिकुलरली, तो देयर इज नो नीड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक हाइपोथिकेट करेगा जो आपने एसेट क्रिएट किया बैंक के फाइनेंस से। अगर आपने स्टॉक परचेज किया तो स्टॉक पे बैंक का हाइपोथिकेशन रहेगी, मशीनरी परचेज की तो मशीनरी पर बैंक की हाइपोथिकेशन रहेगी। इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई लिक्विड सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी बैंक नहीं ले रहा तो फिर बैंक कैसे लोन देगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड क्रिएट किया जिसका CGFMU नाम रखा गया। तो वो फंड हाउस या जो हम एक कॉरपोरेशन कहें, वो गारंटी देता है बैंक को और उसके बदले में फीस चार्ज करता है। तो वो फीस हैज टू बी बोर्न बाय द बोरोअर। तो वो फीस आपको बोरोअर जो लोन लेगा, एनुअल फीस उसकी रहती है, वो बॉर्न करनी पड़ेगी बोरोअर को। यानी कि कोलेटरल की हमें कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले में एक फीस रहती है वो पे करनी पड़ेगी। एक थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी जिसका नाम CGFMU है। कल को अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो बैंक का पैसा CGFMU पे करेगा। तो इस तरह से ये कुछ मोटी मोटी बातें मुद्रा के लोन को लेकर। PMEGP और मुद्रा में डिफरेंस क्या है? अगर कुछ चल रहा है तो PMEGP इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स ओनली, मुद्रा कैन बी अवेल्ड फॉर न्यू एज वेल एज फॉर ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है। और PMEGP में हमें सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। PMEGP 25 लाख तक जा सकता है, इसमें 10 लाख तक। 10 लाख तक उसमें भी आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, 10 लाख तक इसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो सिक्योरिटी उसमें भी रहती है। ये कुछ मोटी मोटी चीजें। बाकी आपकी अगर क्वेरी है इसके रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम।
राकेश जी, एससी मैम आपका नाम? सरबजीत। हाँ मैडम सरबजीत हैं अब हमारे साथ SC ST कॉरपोरेशन से। अब आगे का जो वेबिनार है वो लेंगे। गुड आफ्टरनून। सर आपने म्यूट किया हुआ है। हेलो। जैसा कि अभी उमेश महाजन जी ने SBI से उमेश महाजन जी ने बड़े विस्तार से मुद्रा लोन के बारे में बताया, तो अब उसी कड़ी में हम आगे जुड़ने जा रहे हैं मैडम सरबजीत कौर SC कॉरपोरेशन पठानकोट से, जो कि आपको बड़े विस्तार से और आगे बताने जा रहे हैं। और मैं कि जैसे कि मैं चैट बॉक्स में क्वेरीज भी देख रहा हूं, और उसी में मिस्टर रविंद्र कुमार जी जो HDFC बैंक से हमारे साथ जुड़े थे, उनका नंबर भी यहाँ पे शेयर कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पठानकोट की तरफ से। अगर किसी को कोई भी दुविधा है, किसी को कोई भी समस्या है या कोई डाउट है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ डायरेक्टली। तो अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में स्क्रीन पर आ चुकी हैं मैडम सरबजीत कौर SC कॉरपोरेशन पठानकोट से। मैम आपका स्वागत है। अब आप आगे जो है बात करिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स। मैं SC कॉरपोरेशन पठानकोट से। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, जितने भी लिसनर्स हैं सुनने वाले, मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे वो, और मुझे बहुत खुशी है ये आप सबसे जुड़ने में, क्योंकि मैं खुद श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक हिस्सा रह के यहाँ तक पहुँची हूँ। और मिस्टर एंड मिसेस पुंज जो हैं वो बहुत अच्छे मेरे साथ उनके रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि एमएड का फर्स्ट बैच था जो मैंने उस टाइम अटेंड किया था। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबसे बात करने में। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, जैसे हम लोग स्टडी करके निकलते हैं जब, तो कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा कि हम क्या करें आगे। बहुत लोग होते हैं जो हमें बोलेंगे कि ये करो वो करो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स जो भी है हमें बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं करने के लिए। तो उस टाइम बच्चा जो है या कोई भी है मोस्टली कंफ्यूज होता है कि हम लोग क्या करें। तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो एक जरिया है हमारे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बच्चों के बीच में गाइड करने के लिए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मेरी ये सलाह है कि चाहे जो जितना भी आपको गाइड करे, पर पहले आप ये ज़रूर देखिए कि आप में स्किल क्या है, आप किस चीज़ के लिए आप जो है कुछ कर सकते हैं। जब आपका इंटरेस्ट होगा कोई चीज़ करने में, तभी आप उस पर आप पैसा लगाओगे तो उसका फ़ायदा है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और आप ये सोचते हो कि भाई कह रहे हैं, फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं तो चलो हम यही कर ले, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ आप अपना इंटरेस्ट जनरेट कीजिए। हर बंदे में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है। हमारा ब्रेन जो है 100% तो कोई यूटिलाइज नहीं करता है, हम लोग हार्डली अपना 3 to 4% माइंड यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो इस टाइम स्टूडेंट्स की एज ग्रुप होती है वो ऐसी होती है कि हमें अपना मैक्सिमम ब्रेन यूटिलाइज करके अपने नेशन के लिए सोचना चाहिए। तो सर SC कॉरपोरेशन जो है ये 2 तरह की स्कीम्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट जो है वो BTS है, बैंक टाई अप स्कीम। ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनके पास कोई नंबरी ज़मीन वगैरह नहीं होती या सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें ये स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है। उनका सीधे बैंक से टाई अप करवाया जाता है। ये स्कीम जो है ये 75,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है। और इसमें किसी भी काम, चाहे वो छोटे से छोटा काम है, फेरी लगाना है या सब्जी की कोई दुकान है, फ्रूट का कोई आपने जूस बार खोलना है या कोई करियाने की दुकान है, जनरल स्टोर है, जो भी आप करना चाहते हो या आपकी फैमिली में कोई कर रहा है, तो उसे हम ये लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा लोन जो है वो है DLS, डायरेक्ट लैंडिंग स्कीम, जो कि चंडीगढ़ से हम लोग करवाते हैं। इसकी जो अमाउंट है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में है। इसमें स्टडी लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है।
8%, और जो कि 5 साल तक या 3 साल तक जैसे कि आप अपनी किस्तें या इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हो, तो उस हिसाब से आपको हेड ऑफिस एक चार्ट बना के देता है, और आप उसमें जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे शटरिंग का बिजनेस है, चाहे बुटीक का है, चाहे पार्लर का है, चाहे आप कोई भी किसी भी तरह की दुकान खोलना चाहते हैं, उसके लिए मिलेगा। लेकिन मैरिजेस के लिए और मकान बनाने के लिए, इन 2 काम को छोड़ के आप जिस तरह का भी कोई कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी इंटरेस्टेड होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं तो अपने तक ही रखें। प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को नीड है उन्हें आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें कि ब्यूरो में जाके आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स का नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Yes, thank you, ma'am. Thank you very much. और I am really very thankful to you. I just come to know about this. You are an alumni of Shri Sai College of Education. So heartily welcome to you and thanks to you from your institution, ma'am. Thank you for providing this valuable information to all the listeners as well as the viewers. So अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी मैम ने हम सबको, और अब मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे जो स्पीकर्स हैं वो तो सब स्पीकर्स ने सारे डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी हैं, तो हमारे बीच में अब राकेश जी हैं स्क्रीन के ऊपर, प्लेसमेंट ऑफिसर हैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जो हमारा जनरेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है पठानकोट के अंदर, डीसी कॉम्प्लेक्स में मलिकपुर में ऑफिस है, तो वहाँ पे सर बैठते हैं, उनका ऑफिस है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी दो मिनट जो हैं सबसे रूबरू हों, और कुछ अगर जानकारी जो है जो रह गई है वो अगर शेयर करना चाहें सर अपने लेवल पर, तो एक बार जरूर शेयर करें। राकेश जी। थैंक यू मिस्टर सुलक्षे जी। पहले तो जो सभी यहाँ पे स्पीकर्स आए हुए हैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और बच्चों को ये इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं आस करता हूँ कि जितने भी जो भी यहाँ पे व्यूअर्स थे जो सुन रहे थे, वो इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा फ़ायदा लें, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन अपनी तरफ रखना ही ज़्यादा बात, उसको इम्प्लीमेंट करवाना मेन चीज़ है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्लीमेंट करवाओ, अपना जो भी प्रपोजल है वो सोचो, वो लेके आओ अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के पास। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आ जाओ आप, हम उनको असिस्ट करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि बंदा सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। क्योंकि जो हम डिग्री कर रहे हैं ना, जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, इनका यही मकसद होता है कि बंदा खुद डिपेंडेंट ना रहे किसी के ऊपर, और वो इंडिपेंडेंट बन जाए, कुछ ना कुछ काम शुरू करे अपना, ताकि उसको जॉब नहीं भी मिलती तो वो अपना काम शुरू करके अपनी लाइवलीहुड को सेव कर सकता है। क्योंकि अभी जो कोविड का दौरान चल रहा है तो इसमें काफ़ी जॉब क्रंच भी हुई है और कई बंदों का बिजनेस भी सफ़र किया है, बट ये ऐसा नहीं रहेगा। थिंग्स विल बी चेंज, सुबह फिर होगी दोबारा, और हम सभी ने उठना है और अपने को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ मैं एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा सभी बच्चों के साथ, कि हमारा पोर्टल है एक जो पंजाब सरकार ने बनाया हुआ है, www.pgrkam.com। इस पे जो भी बच्चा है इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों को, जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू देयर करियर्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हम इस पे सारे जो एम्प्लॉयर हैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं बच्चे। जैसे naukri.com होता है ना, ये भी सेम है, अभी ये मतलब ग्रोइंग स्टेज पे है, तो विद इन 6 मंथ ये काफ़ी इस पे एम्प्लॉयर आ जाएंगे और बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। 12,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इस पोर्टल में आ चुके हैं। तो जो भी बच्चा है, चाहे वो 10th ऑनवर्ड जो परस्यूइंग अब पढ़ रहा है, जहाँ पढ़ के जा चुका है, तो यहाँ इस पोर्टल पे आए और अपने आप को रजिस्टर करवाए, ताकि हम उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और हम उनको फ्यूचर में कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकेंगे। और ये सेशन इन सेशन का अंत नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू सर एंड सभी जो भी बच्चे हैं, ताकि इसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। इसके साथ ही सर मैं यही सब कहना चाहता हूँ, मैं सभी का जो वक्ता है यहाँ पे उनका धन्यवाद करूँगा, और श्री साई इंस्टीट्यूट ग्रुप का भी धन्यवाद करूँगा, स्पेशली सुलक्षे जी और गौरव जी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। तो विद दिस आई हैंड ओवर टू मिस्टर सुलक्षे जी, प्लीज।
जी राकेश जी, थैंक यू सर। और अब इसी के साथ, जैसे कि राकेश जी ने बोला, मैं इसी को कहना चाहूंगा कि हम आज ही अभी इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो भी इसका उपयोग करना चाहता है, जैसे कहा गया कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जा सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं, या जो हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स के यहाँ पे ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं, अपनी कोई समस्या है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आए हुए सभी एक्सपर्ट्स का तहे दिल से श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन साहब इंजीनियर एसके पूंज जी, हमेशा उनका यही रहा है कि सबको हमने इसी ओर चलाना है, क्योंकि साईं कॉलेज जो है वो हमेशा इसी पथ पर अग्रसर रहा है कि हर कोई योजना, चाहे वो सरकार की योजना है, चाहे कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है, वो हमारी यूथ ब्रिगेड को मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पर हो। उसी पर हम लोग अमल करते हुए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि साइंस संस्थान हमेशा, अब जैसे कि आप देख रहे हैं पठानकोट ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर ये प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। भाव यही है कि आप सब लोग की अभी समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं हैं, जो बिजनेस चल रहे हैं उन पे भी समस्याएं हैं, और जो नए स्टार्ट होने हैं उन पर भी है। तो आपको एक दिशा दिखाने का जो काम किया जा रहा है साईं पॉलिटेक्निक कॉलेज और पठानकोट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ से, तो हम यही चाहेंगे कि आप इसका सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। पुनः मैनेजमेंट श्री साईं कॉलेज पठानकोट की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, एमडी मैम की तरफ से, सीएमडी साहब, और इस वेबिनार सीरीज के जो हमारे आज के जो अध्यक्ष रहे हैं अपना इंजीनियर मुकेश गुप्ता जी, प्रिंसिपल साईं पॉलिटेक्निक कॉलेज, और गुरनैल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पठानकोट, उन मैं देख पा रहा हूँ वो भी स्क्रीन पर हैं, गुरमैल सिंह जी, मुकेश सर भी हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक्सपर्ट्स का तो है ही है, हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं श्री साईं कॉलेज के श्री गौरव शर्मा जी, उनका भी धन्यवाद, आईटी टीम का धन्यवाद, और सब लोग जो आज इस सेशन के अंदर जुड़े, जो स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि कहीं काम जो व्यापार में भी हैं, अपने व्यापार को आगे भी लेके जाना चाहते हैं, और कुछ आप में से मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं ऐसे जो जिनको हम बोलते हैं सुपर माइंड, ऐसे जरूर होंगे जो कि आज इस सेशन के बाद जिनके पास कुछ ना कुछ आइडिया तो है, उस आइडिया को आगे लेकर जाएंगे, और जो उनके मन के उद्गार हैं, जो उनके भाव हैं, उसको उनके समक्ष रखेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ अपना डिस्कशन करेंगे, और इसके अंदर जरूर अपना जो वो चाहते हैं, जिस तरह की भी सहायता चाहते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से है या ब्यूरो की तरफ से, उनको मुहैया करवाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका श्री साईं कॉलेज, श्री साईं पॉलिटेक्निक कॉलेज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ से जो आज वेबिनार रखा गया था, उसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू ऑल।